Good morning, student. Welcome in the class. Okay, this is the history. Listen first. The name of the chapter is When, Where, and How. So, firstly, we have to understand what is history, and after that, we will start the chapter. So, history means events are the fact that is connected to someone or something. Means history क्या होता है? हिस्ट्री बीती घटनाएं होती हैं जो कनेक्टेड होती हैं या तो किसी पर्टिकुलर स्पेशल पर्सन से या किसी चीज़ से. Okay. And in this chapter we will learn about the past and where did the people live in the ancient times, name of the land such as India and Bharat, finding about the past such as monument and inscriptions, what do dates mean like BC and AD, and elsewhere Rosella stone of Egypt. Okay, so let's start the chapter. As I told you, history is not the simple narration of the past events or chronicle order. It studies about the man, how he progressed, how he lived, achievements, and what are the problems faced. So it helps to know about past events, as I told you already. It acquaints us with our ancestral king and important peoples and common men. It tell about the evolution and the progress of knowledge and different fields. It tells us about the progress in art, architecture, language, religion, culture and civilization, belief, Christianity. It helps to present day problems and how we can tackle them in effective manner. मतलब इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे कि हम अपने पास्ट इवेंट में क्या क्या देखें, हम अपने पूर्वजों के बारे में जानने जा रहे हैं और पास्ट के लोगों और कॉमन पीपल हो चाहे राजा उनके बारे में जानेंगे. ठीक है, हमने कैसे प्रोग्रेस किया अपने हर फील्ड में, जैसे कि लैंग्वेज, आर्ट, ये सब का कैसे हमने विकास किया, कल्चर का. और आज हम लोग जो प्रॉब्लम्स है इसे जो हम लोग पास्ट में किए उससे हम लोग कैसे फ्यूचर में अफेक्टिव मैनर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उससे हेल्प ले सकते हैं. एक्चुअली हम लोग जो भी बीती घटनाएं होती हैं उससे फ्यूचर के लिए हम लोग कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, तो कैसे हमारे लिए अफेक्टिव हो सकते हैं. एंड हियर इज कमिंग द सेकेंड पॉइंट, टाइम लाइन ऑफ हिस्ट्री. इफ़ यू टॉक अबाउट द frame line of history, it can be divided into two terms, prehistory and history, and the further divided into BC and AD. So let's start. So first, prehistory. Okay, the prehistory is the time period when the evidence is not available which can be point to the specific occurrence, when there is no written record about early humans. Okay, no written records. Please remember this. And the second is proto-history. I will give you some special topic about this. Proto-history means the time zone between prehistory and the history. ओके, जब हमारा हिस्ट्री यानी कि जो डेट इवेंट्स जो फिक्स हो गया था, जब हमारे पास इवेंट्स की सारे रिटन रिकॉर्ड्स थे, उसके बीच वाला जो टाइम था, जैसे हमारा इंडस वैली का हो गया, तो इस तरह का जो टाइम था हमारा वो प्रोटो हिस्ट्री में आता है. क्लियर. एंड द थर्ड इज ऑन द अदर हैंड हिस्ट्री. History on the other hand is based on the different type of evidence like written record, inscription on the building and the rocks which occur the way we understand them. मतलब वे घटनाएं जो रिटन रिकॉर्ड में थी और जिससे हमें पास्ट को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्पफुल हुआ, तो इस तरह के इवेंट्स हिस्ट्री हम कहेंगे. ओके. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज जियोग्राफी एंड हिस्ट्री. ओके, you have read the landforms play an important role in the varied manifesto of life like food, lifestyle, climate, vegetation, etc. And when we read the history conjunction, but after that we have to understand about BC and AD. Sorry. And what is the meaning of BC and AD? BC means before Jesus Christ. AD means Anno Domini. Okay. सो अब आप पूछोगे BC और AD क्या होता है, ये तो हम जानते ही नहीं हैं. तो मान लेते हैं एक टाइम जोन हो गया, ये जीसस क्राइस्ट हो गया, एक जीसस क्राइस्ट के पहले की टाइम, ओके, और एक जीसस क्राइस्ट के बाद की टाइम हो गया. तो जो जीसस क्राइस्ट के पहले का जितना भी जन्म का जो भी इवेंट हो तो हम उसे BC में लेंगे, कोई भी इवेंट होगा, और जो जीसस क्राइस्ट के बाद का जो भी इवेंट होगा हम उसे AD में लेंगे.
याद रखिएगा, कोई भी अगर आप डेट देख लो, मान लीजिए 530 BC या BCE। और हाँ, एक चीज़ और, BC और BC इस दोनों को याद रखिएगा एक ही है, अलग नहीं है। AD और CE एक ही हैं। आज न्यू वे में हम लोग BCE और CE कहते हैं। जैसे मैंने बताया, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है, तो इसको BCE में क्या बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा। और AD मीन्स एनो डोमिनी, तो CE मतलब कॉमन एरा। ओके, बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा, याद रखिएगा। तो 530 BC मान लीजिए, कुछ भी मैंने कोई डेट दे दिया, ठीक है। आप अभी हिस्ट्री में बहुत सारा पढ़ोगे, तो मान लीजिए आज हमारा 2019 चल रहा है, ये कितने साल पहले की बात है। तो जहाँ भी BC या BCE आएगा, तो उसको आप प्लस कर दीजिएगा कि इतने साल पहले की बात है, तो हमें पता चल जाएगा कितने साल पहले की बात है। यानी कि अभी 530 बिफोर था, तो आज की डेट से ये कितने साल पुराना हो गया, 2549 ईयर्स बिफोर। तो याद रखिएगा, जहाँ BC की बात आए उसमें प्लस कीजिएगा, और AD की बात आएगा तो माइनस करना है। ओके। ज्योग्राफी भी अपने आप में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है हमारे हिस्ट्री के लिए। पहले क्या था कि मनुष्य जो था, हमेशा फूड गैदरिंग के लिए हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पे रहता है, कभी वो एक स्थान पे नहीं रहा, ठीक है। जहाँ भी उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट, क्लाइमेट दिखा, अच्छी सिचुएशन, अच्छी सब कुछ मिले, प्लाटू हो गया, माउंटेन हो गया, या प्लेन एरिया, इस तरह के जो रिवर वैलीज़ या रिवर वैलीज़ जो थी, इस तरह की जगह जो थी, काफ़ी अट्रैक्ट किया लोगों को रहने के लिए। तो यहाँ पे लोग आते थे, पॉपुलेशन बढ़ी, इन्वेडेड किए और यहीं पे बसने लगे। ओके। अभी ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात कर रहे हैं हम, कि हमारा जो भारत है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो हम बात करें सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया की, तो ये हिमालय से लेकर के पामीर के पठार से, यानी साउथ से होते हुए इंडियन ओशन साउथ में, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, और अरेबियन सी वेस्ट में होते हुए फैला हुआ है। और इसको हम लोग अपने इंडिया को लोग भारतवर्ष, भारत, हिंदुस्तान और इस तरह के नामों से जानते हैं, ठीक है। हमारा लैंड मास जो है कंप्राइजेज 6 कंट्रीज़ विच आर, इसके मतलब आसपास की जो कंट्रीज़ हैं कई, उसको बता रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान यानी नेबरिंग कंट्रीज़, बांग्लादेश, भूटान, ETC ये सब हैं। बट मैं आपको इसमें कुछ और भी बताना चाहूँगी। हमारी इंडिया का नाम, वैसे तो भारत की बात करें तो आप जानते हो कि ये जो राजा थे, भारत राजा भरत के नाम पे पड़ा, वो तो ठीक है। हिंदुस्तान, यहाँ पे हिंदुओं की जो होती है मेजॉरिटी ज़्यादा थी, इसलिए रखा है। बट अगर मैं बता दूँ तो हमारा जो इंडिया का नाम इंडिया पड़ा है, वो क्यों पड़ा है। एक्चुअली हिंदू भी सिंधु नदी से होकर मिलता है। हम लोग एक्चुअली, हमारे जो एंसेस्टर थे वो आर्यस थे, ठीक है। अभी आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे, मैंने आपको जो कि पढ़ाया था, अभी बोला है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो आपको यहाँ पे जानना थोड़ा ज़रूरी है। हम लोग सिंधु सभ्यता से ही बने हुए हैं, ठीक है। तो हमारा जो सिंधु नदी है, ठीक, वो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रिवर जाती है, सिंधु नदी। सिंधु को इंग्लिश में बोलते हैं इंडस नदी, और इंडस अगर हम लिखें INDUS, इसको इंग्लिश में अगर इंडस लेके उसमें IH लगा दे तो हो गया हिंदूस। तो इस तरह से हमारा जो हिंदूज़ है, हिंदुस्तान, वो इंडस नदी के ही नाम से रखा गया है, ठीक है। इसको हिंदुस्तान, और इंडिया से हो गया इंडस, तो इंडिया से इंडस बना और इंडस से हिंदू बना, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अगर हम अपने पास्ट के इवेंट्स के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, तो उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, कैसे हम बता सकते हैं अपने पास्ट के बारे में। तो उसके लिए हमें दो तरह के सोर्स मिलेंगे, 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज, लाइक literary sources and archaeological sources. But about this we will talk in the next video, and I hope you enjoyed this video, and thanks for watching.